Hello. Are you able to see my screen? Yes. Okay, great. Thanks. Okay, so last class we had installed the Excel server, right? Just we have installed and we restarted it. Nothing we had done, so we have to start configuration again. Hello. Hello, are you able to hear me Sir. or not? Yes, sir. What happened yesterday? I think you were trying to means you are giving IP address of domain means Right, 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 right. that's why you need to Yeah. give IP address of exchange. That's Okay. You meant to say an exchange, something like that? yes, yes. You were giving 108 IP address and our exchange IP address is 106. Yeah, yeah, I have changed it actually. Yeah, that's right. You are right. Okay. So, okay, this is our exchange server. Just a moment. I will. Yeah. Okay. So just this is our Exchange Admin Center, right? Same. It Yes. looks like Exchange Online or Office 365 messaging. Okay. So we will start from the main part, server part. Uh, means in servers we will see the major components, right? Okay. So we have to like in server you will see the how many exchange servers installed on your organization, right? So you can see exchange 01-2016 one exchange server, exch 2016 is the one exchange server, right? And the role would be, it will be mentioned like mailbox, because in 2016 we have only single role, right? Yes. Okay, so here you can see the version as well. You can see version 15.1 and build is a 1713. Okay, so same, the latest version would be this one. So this is how we will identify in your organization how many exchange servers installed in your environment with the same organization name and in your domain. So if you install more than one again, so here it will be listed out with the server name and role. Roles would be only single, because in 2016 you don't have multiple roles. Only in on a single role we have client access service and hub transport service, right? Oh, yes. Got it. So this is the server tab. So if you we want to see some property, just I will edit this server. You can see here I'm clicking on edit. So right, so these are the properties. Okay, so in general it is showing me the roles, right? And version would be, this is the exchange version 15.1 build 1713. It will be changed accordingly when we update, or we update the community updates, right? Then it might change that version. Build version would be changed. Like now it is showing 15.1, maybe it will 16.2 or maybe 15.2, something like that. So that is just for your information. So it will change accordingly when you update with the new version. Okay. So here databases, I am clicking on the databases and availability group. As of now, we have single database you have created, right? This is the mailbox I find it. This is the one we have created, right? So it is showing me the database
and also showing me the status. It is showing me the status. Mounted means it is mounted. Then you can able to access the. Means it is by default, na? Yeah, After yeah. installing It is by default. Yeah. Yeah, it is by default. It will come with this database. Okay. Okay. Yeah. So mounted database is showing me the number one. Here also it is showing me the database status would be mounted. So it is a working condition. So maybe it is here somewhere not dismounted. Then you are not able to access the mailboxes which are available in that database. So we have to try to mount that database. Then only you can able to do it. Otherwise, not possible. Okay. Okay. Got it? Yes. Harshal, are you with me? Yes. Got it. Okay, okay, fine, thanks. Yeah, it is the POP3 and this IMAP4. So as you know, we are not using POP3 and IMAP4. Only any specific application related, if it required, they will use it. Otherwise, it is not required. So just for our information, for understanding, you're supposed to know what is the POP3. POP3 is the Post Office Protocol version 3. So if you configure in this scenario, so mails will be downloaded to your Outlook client. So this will be utilized in this application, like automated application, something like that. So nowadays, but for Outlook client, we are not using as of now. Earlier in old versions, old days, we used to POP3 because we are having the less space in the database, mailbox database, right? Now we are giving the 100 GB primary mailbox, 100 GB archive. So there is no space issue. Right, earlier in POP3, what it happens, once you configure, once you just click the mail, that mail will be downloaded to your local PST. Right now, there is no local PST concept. It is there. We have the OST, offline storage table. So only some offline table will be created, local cache, but mail all content would be in the mailbox only. Where you go, you can access the your mail content. Right, so that's why we are not using. And port is 110. This port POP3 port will be in into they will ask, right, port, right, without SSL port is the 110, you can see here, and SSL port would be 995. Please make sure you remember this port. So in people in interview they will ask what is the POP3 port, what is the SMTP port, what is the IMAP4 port. SMTP is the 25, POP3 is the normal is the 1110, and SSL secure one is the 995. Okay, and we will go for IMAP4. This is also we are not using as of now, but in application sometimes they will use. So just for information, we will try to understand. This is also one type internet messaging protocol version 4, right? So this port is the 143 is the normal port without SSL secure, and secure is the 993. You have to remember this port. They will ask in interview. Okay. Then we will go to the unified messaging. Unified messaging is the voice message. So we are not using normally, in rare case they will use, but that is a totally different team will be there. It comes under the Skype or link in the unified messaging, not comes directly in the Exchange, but it is a part of it actually, because that voice message is using the our mailbox some part. So that voice MP3 or MP4 that file attachment will come and store in our Exchange mailbox, right? If you enable so the only there is no option for recording and this in Outlook. So directly only we can attach voice, na? Right. Video. Yeah. So it is an integration part, you can say. It is not totally independent, like how we are accessing mailbox, not like that. So it is integrated with the Skype or link or any voice equipment like Cisco and all, right? Because that automated message will be landing to where in that telephone, right? If I'm calling to some telephone, so that time people that recipient is not there, right? He put some message, automated message. So I am not available right now. So just leave your message. I will call you back as soon as possible. Like that message will be there, right? That message will come and store in inbox. That's it. So he can record and he can listen that message. That is only part of the unified message. But
it is actually integrated, not independent part. It is integrated with other equipment like Cisco gateway is there, or maybe other Skype is there, or Teams is there. So it is a part of that. Okay, Okay. understood, Harsha? Sir, but how to integrate it, these things? Yeah, I'm telling you, we have to install the unified messaging role, Okay. right? Okay, then we have to integrate here. You can see this is the TCP is the 506 port, TLS is the volmit. I will show you. You have to configure the dial plan also first, right? You can see here dial plan is the other. This is a totally different actually is there. Just we can some part we can discuss. See, this is the server settings, right? This is a port will you listen. You have to integrate with the other part, that Cisco gateway. This is a language which we are enabling it in English or any, and we have to dial pan where it will be configured in the Skype or Teams or Cisco gateway. We have to associate that dial pan. So that with the integration with the dial pan, that number will be dialed to their gateway. Then what message is left in that number, then it will come and store on the user number. They will integrate with the our mailbox. Means Okay? our telephone number we have to add here. Okay. Yeah, correct. Yeah. And where to map means mail ID then? No, I will tell you one more thing. See, this is our Excel server. So in Excel server, what it will happen? We will create the mailbox. Correct? Yes. Right? Okay. So in calling facility, where it is available? In Skype or Teams, correct? Yes. Not in Exchange. Not in, calling facility is not available in Exchange, correct? Yes. आपको कॉल करने के लिए कहाँ पे मिलता है? एक्सचेंज पे नहीं मिलता है. Teams, आप कॉल Teams करने के लिए हाँ टीम्स में. तो ये टीम्स के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. समझ गए? हाँ. ओके, जब ये इसका यूजर आईडी टीम के साथ में इंटीग्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा? सिप एड्रेस मिलेगा, SIP सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, करेक्ट ना? मैंने बताया था ना आपको, SIP आता है जब अगर करेक्ट. तो वो सिप आईडी के साथ में एक नंबर रहेगा. आपने अगर देखा होगा तो डेली नंबर्स रहते, राइट? वो तो वो जब भी कॉल करेगा तो वो नंबर इसके साथ इंटीग्रेट रहता. तो जब जो भी मैसेज आता है वो नंबर के लिए यहाँ पे आके लैंड होएगा, क्योंकि हमका इंटरनली इंटीग्रेशन रहेगा. उसका थोड़ा अलग बहुत ज्यादा पार्ट है, बट अपन उतना डीप में नहीं जा सकते. सो दैट इज कम्स अंडर द टीम्स एंड स्काइप एंड ऑल. सो हम इतना ही थोड़ा समझ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिफाइड मैसेजिंग, राइट? क्या करता है. ठीक है, ओके. अंडरस्टूड? और कुछ और एक्सप्लेन चाहिए आपको? नहीं. व्हाट इट, राइट? ओके फाइन, थैंक्स. ओके, सो DNS लुकअप, ये तो इट इज अ DNS रिलेटेड क्वेरी का है, राइट? सम सेंड कनेक्टर्स यूज एक्सटर्नल DNS. आपको पता रहेगा, जैसा आपका मेल जब बाहर जाता है तो इट विल यूटिलाइज द DNS रिकॉर्ड, राइट? ये MS रिकॉर्ड, करेक्ट ना? रिजॉल्व योर डोमेन. सो उसके रिलेटेड है. सो some send connectors use external DNS settings to resolve MX resource record, specify use of the DNS server configured on the network adapter or manually configure a DNS server IP. तो अपने को ये by default we have selected the IPv4 version. So यहाँ ये server से it will go out from to external network, right? So we will configure accordingly. ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ नो नीड टू ऐड एनीथिंग, इट ऑटोमेटिकली गो आउट. इफ आई वांट आई कैन ऐड इट द DNS और अपना DNS का सर्वर ऐड करना रहता है क्या यहाँ पे? हाँ, अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये IPv4 वर्जन दिख रहा है ना, ऑल नेटवर्क अडाप्टर, मतलब ये अडाप्टर के थ्रू मेरा बाहर जाएगा, इसमें इंटरनेट एक्सेस रहेगा. तो नहीं तो हम लोग फॉरवर्डिंग एनेबल करेंगे. कंडीशनल फॉरवर्डिंग DNS में आता है ना, अगर क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रहा इंटरनली, देन इट विल फॉरवर्ड टू एक्सटर्नल DNS सर्वर, करेक्ट? समझ गए, राइट? नहीं, ओके, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, समझ में आएगा. ये क्या है? इंटरनल लुकअप. इंटरनल DNS सर्वर
used to locate server inside the organization section. Use of the DNS server configured on the network adapter or manually configured DNS. Internal तो समझ में, इंटरनल DNS अपना क्वेरी इंटरनल DNS ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है, राइट ना? ठीक है, तो अगर मेरे को ऐड करना है, ये ऐड कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट मेरा इसके अंदर जो IPv4 वर्जन जो है, अभी ये देखो यहाँ पे मेरा IPv4 वर्जन है, राइट? तो ये मेरा क्या बोलते हैं, इंटरनल तो क्वेरी करी रिजॉल्व करता ही है जो भी इसको आता है, करेक्ट ना? अंडरस्टूड, राइट? मतलब अभी मतलब मेरा क्लाइंट है आउटलुक क्लाइंट इंटरनली, तो जब भी मैंने कॉन्फ़िगर करता हूँ, मेरा ऑटो डिस्कवरी के हेल्प से मेरा एक्सचेंज सर्वर्स का इंफॉर्मेशन वो फेच करता है, राइट ना? तो वही लुकअप्स है। लुकअप्स मतलब व्हाट, डीएनएस का जो मतलब ये जो सर्वर का अडाप्टर है ना, नेटवर्क अडाप्टर, एक मिनट में समझा दो, ये वाला, इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने दिया है IP4, इसके थ्रू इसको ही लुक करेगा ना, ये 104 जो भी आईपी एड्रेस है यहाँ पे, इसको ये रिजोल्यूशन मिले, ये रिजॉल्व कर पाएगा ना, ये जो भी है, ठीक है? तो ये आईपी एड्रेस को कहाँ से, ये कौन से अडाप्टर में है अपना, IPv वर्जन 4 में, राइट? तो ये जब इंटरनली जब भी कुछ रिजॉल्व करेगा तो ये अडाप्टर को लुक करेगा मेरे को, वो उसका मीनिंग है ये, ठीक है? अच्छा। और यहाँ पे हम लोग इसी के थ्रू भी बाहर भी जाएगा, अगर इफ रिक्वायर्ड वी कैन पुट दी एक्सटर्नल DNS सर्वर का नाम हम लोग ऐड कर सकते हैं, या MX सर्वर, ये भी अगर आपके पास रिकॉर्ड है डाल सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या करेगा, इंटरनल क्वेरी ये खुद का DNS सर्वर से रिजॉल्व करेगा। अगर उसके पास अगर एक्सटर्नल क्वेरी है, जैसे gmail.com है, तो वो एक्सटर्नल सर्वर को भेजेगा। कैसा भेजेगा, फॉरवर्डर, जो अपना DNS का फॉरवर्डर आता है, मैं चाहे तो वो इसमें बताऊंगा आपको DNS सर्वर में कहाँ पे फॉरवर्डर आता है। वो क्या करेगा, गूगल के या दूसरे, गूगल का क्या है DNS सर, 8.8.8.8. ये गूगल का है, तो वो गूगल के हेल्प से एक्सटर्नल क्वेरी को बाहर भेजेगा, वो DNS का क्वेरी बोलते हैं उसको, ठीक है? कुछ कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, आप समझ में आया? मतलब आप कितने भी डाल सकते हैं, मतलब उसके थ्रू ही जाए, गूगल का 8.8.8. हाँ डाल देंगे, हाँ, ठीक है? तो वो एक्सटर्नल रिजॉल्व करेगा। अभी गूगल का DNS सर्वर के पास सबका क्वेरी है, राइट? मतलब naukri.com को रिजॉल्व कर पाएगा, दूसरा भी कोई भी वेबसाइट को, IRCTC को भी कर पाएगा ना, गूगल वाला करता है ना, जब आप सर्च करते हैं तो रिजॉल्व करता है, राइट? तो वही मतलब DNS क्वेरी मतलब उसी को बोलते हैं। इंटरनल क्वेरी होता है, एक्सटर्नल क्वेरी होता है। इंटरनल मतलब अपना इंटरनल सर्वर DNS सर्वर रिजॉल्व करेगा, जैसा कि अभी क्लाइंट 8-01 मेरा। अच्छा, मतलब हम गूगल में कोई मेल ID डालते हैं तो वो आता है ऑटोमेटिक, वो बोल रहे हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली, तो उसके पास वो अपना रेजुलेशन रहता है। अभी जैसा फॉर एग्जांपल, आप कौन से कंपनी में काम करते हैं? मैं भी विप्रो में हूँ, पर इधर SBI में विप्रो हूँ में, क्लाइंट। ओके। अगर विप्रो में अगर आप है, ठीक है, तो wipro.com या विप्रो ऐसा सर्च करेंगे तो आपको गूगल रिप्लाई करता है क्या, नहीं करता है? रिस्पॉन्स करता है ना विप्रो, हाँ। तो उसके पास रिकॉर्ड है ना विप्रो का पब्लिक डोमेन पब्लिश्ड है, उसके पास है। उसी तरह हम जो भी पब्लिक डोमेन को पब्लिश करते हैं ना, तो यहाँ पे वो गूगल हेल्प करता है अपने को सर्च करने के लिए, ठीक है? उसका मीनिंग वो है। अभी वो मैं थोड़ा सा आपको DNS में बताता हूँ, थोड़ा और आपको कैसा क्वेरी होता है। ट्रांसपोर्ट लिमिट्स, ये है एक सर्वर पे अपने को ट्रांसपोर्ट लिमिट, जो मेल्स किस तरह एक्सपायर, वो सब चीजें, जैसा कि रिटायर, आउटबाउंड कनेक्शन फेलियर, रिटायर मतलब अभी कोई आउटबाउंड जाता है, एक तो इनबाउंड रहता है, एक आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब इनकमिंग आने को बोलते हैं हम, आउटबाउंड मतलब आउट, जो बाहर जो मेल जाता है, जैसा मेरे ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी तरफ जा रहा है मेल, उसको हम आउटबाउंड बोलते हैं, करेक्ट? इनबाउंड मेल फ्लो, आउटबाउंड मेल फ्लो। तो इसका रिट्रीवल टाइम जो है 600 डिफॉल्ट है। अपन डिफॉल्ट ही ध्यान देने का, कस्टमाइजेशन पे हम कुछ भी कर सकते हैं, डोंट गो इन कस्टमाइजेशन। जो भी डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का वो है, हम उसी के साथ में जाएंगे। मतलब जैसे कि आउटबाउंड क्या है? मिली सेकेंड है, सॉरी सेकेंड है, सेकेंड मतलब 600 सेकेंड मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स ना, या 10 आवर्स, 10 आवर्स, 10 आवर्स, ओके।
10 आवर्स, ये 10 आवर्स भी नहीं आए, बिलीव 1 मिनट सेकेंड्स है ना, वो 60 10 सेकेंड मिनट्स इक्वल ना। टू 1 मिनट, हाँ मतलब 10 मिनट्स हाँ ठीक है, 10 मिनट्स। हाँ तो मतलब ये रिट्रीव करेगा 10 मिनट्स के लिए हावर, समझ गए आप? जैसा कि फेलियर होता है ना, पता है ना आपको, जैसा कि एग्जांपल मेरा डिजिटल का कंपनी है, मैंने एक आपको मेल भेज रहा हूँ आपके हाँ wipro.com को, ठीक है, देन हाँ ड्यू टू सम रीजन जो कनेक्शन जो रहता है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो हाँ डिसकनेक्शन, फॉर एग्जांपल टेक वन एग्जांपल, योर नेटवर्क कनेक्ट इज योर विप्रो कनेक्शन इज ब्रोकन फॉर 10 मिनट्स, तो मैंने ऑलरेडी वो टाइम में भेजा एक मेल, तो देन व्हाट इट विल हैपन, so it will wait, it will not give me the NDR, non delivery report का error नहीं देगा, what it will do, it will wait for 10 minutes, again it will try, it will see whether connection will again establishing or not, if it is not, then it will try like that, it will try for some time, then if it is not happening within a 24 hours, it will come back as a NDR, non delivery report, because recipient extension is not accepting or not contacting, due to that reason I am giving this error, समझ गए ना? मतलब वो ट्राई करते रहेगा। अभी जैसा कि मैंने मेल भेजा, जब भी आपका सर्वर डाउन है या नेटवर्क कुछ तो डाउन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है राइट, कुछ भी ब्रेकडाउन हो सकता है ना, तो हाँ जब वो क्या करेगा, वो आपको इमीडिएटली एनडीआर नहीं देगा, वो ट्राई करेगा हर एक टाइम, तो हो सकता है वो जब भी अप होएगा तुम्हारा सर्वर, देन दैट मेल विल बी डिलीवर्ड, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिट्राई का कनेक्शन फेलियर को रिट्राई करेंगे, और उसका टाइम 10 मिनट पर हाउ ट्राई करेगा वो, ठीक है। हाँ और ये ट्रांसफर फेलियर रिट्राई, ट्रांजिट मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं ना, अपन ट्रांजिट बोलते हैं ना उसको, वो भी अगर कभी फेल होता है, जैसा कि एक सर्वर टू एक दूसरे सर्वर को भी जब भी वो ट्राई करेगा 5 मिनट में, और तो उसका ये सेम वही है, ट्रांजिट फेलियर रिट्राई अटेम्प्ट, ये रिट्राई कितने टाइम में करेगा, 6 मिनट में करेगा, तो ये डिफरेंट वो रिट्राई के लिए सेटिंग्स है, अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट यही रहते हैं। और बाद में क्या है, एक्सपायरी कब होता है तुम्हारा मेल? मतलब सर री अटेम्प्ट मतलब ये 6 मैक्सिमम 6 बार ही अटेम्प्ट करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं हाँ नहीं, हाँ 6 बार अटेम्प्ट करेगा बराबर, हाँ 6 बार भी बहुत हुआ हाँ ना, 5-5 मिनट का बोले तो 5 6 30 मिनट तक अटेम्प्ट करेगा वो 6, तो तुम्हारा जब तक हाँ कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व होगा, नहीं होगा तो फिर वो एनडीआर देगा, तुमको हर एक टाइम मेल हाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। अभी ओके। ये और मैक्सिमम टाइम, बोलो। सर हमारे इधर कैसा है, मतलब अभी जब हम वेब मेल से करते हैं ना मेल, तो 1 मिनट के अंदर हमें नॉन डिलीवरी रिपोर्ट आ जाता है, पर जब इससे करते हैं ना आउटलुक एप्लीकेशन से, तो जल्दी नहीं आता, तो उसका कुछ सेटिंग है क्या? हाँ मतलब सेटिंग है ना, ये सेटिंग वो लोगों ने कस्टमाइजेशन किया होगा सेटिंग्स को, वो हिसाब से, मतलब अगर 1 मिनट के अंदर नहीं जा रहा है तो उसको एनडीआर रिपोर्ट देना बोल के, वो रिट्राई ट्राई नहीं करेगा, वो जैसा भेज रहे आप तो वो गया ठीक है, नहीं गया तो अगर समझ लो सामने का सर्वर डाउन है, एग्जांपल पर आप जब भेज रहे हैं, जो जिसको भेज रहे हैं उसका सर्वर डाउन है, एक्सेस या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है नहीं, उस सर्वर को। कभी कभी मेल आईडी गलत रहता है तो उसकी वजह से आता है तो। हाँ नहीं, मेल आईडी गलत है तो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, मेल आईडी का वो इमीडिएटली चेक करता है ना, वो है अच्छा क्या नहीं, वो फिर वापस आएगा, वो तो इमीडिएटली आएगा मेल अच्छा आईडी की नहीं बात अच्छा करें हम, यहाँ पे सर्वर डाउन है, मेल आईडी आपका सही है, बट सर्वर डाउन है, एग्जांपल ऐसा हम लेके कंसिडरेशन कर रहे हैं, या नेटवर्क डाउन है आपके सर्वर, देन इट विल ट्राई टू रिट्राइट, नहीं है तो फिर ईमेल आईडी गलत है तो देन इट विल गिव दी, जैसा कि फॉर एग्जांपल हर्षल का ईमेल आईडी डाला, हर्षल डॉट समथिंग है, मैंने कुछ गलत डाला एक मिस्टेक @wipro.com आपको भेज रहा हूँ, तो जैसा ही हाँ इमीडिएटली वो तुम्हारा wipro.com को पहुंचेगा, विप्रो का मेल बॉक्स सर्वर बोलेगा ये ईमेल एड्रेस गलत है, रिसिपिएंट का एड्रेस गलत है, देन इट विल गिव मी द फीडबैक कि ओके रॉन्ग, तो वो सेम एनडीआर रिपोर्ट मेरे डिलीवरी इनबॉक्स में आ जाएगा कि आई हैव पुट द रॉन्ग एड्रेस, वो सिंपल है वो, that is by default it will work like that only, ठीक है, ओके अंडरस्टूड, हर्षल कुछ यस। डाउट? और ओके, आउटबाउंड तो ये रिस्ट्रिक्शन। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। नीचे नीचे भी आउटबाउंड रिस्ट्रिक्शन है ना कुछ? इनिशियली नहीं समझा, और टाइम बोला। आउटबाउंड रिस्ट्रिक्शन है ना कुछ, मतलब हाँ आउट नीचे। हाँ हाँ, आउटबाउंड पे रिस्ट्रिक्शन अपन डाल सकते हैं जो भी है, बहुत सारे अभी कैसा है,
या एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप आपका मेल गेटवे पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, फायरवॉल पे भी डाल सकते हैं, वहां पे भी सेटिंग्स आते हैं नेटवर्क साइड से भी, ठीक है। अच्छा। अभी हम ये मैसेज एक्सपायरेशन है, दिख रहा है आपको, हम्म। हाँ मैक्सिमम टाइम सिंस सबमिशन। आपको पता है ना, कोई कोई मेल्स 24 आवर्स लेता है एनडीआर देने के लिए, इमिडिएटली भी नहीं आता कभी कभी, वो पता है आपको। हाँ हाँ। हाँ, तो वो हम लोग ने डिफाइन यहाँ पे कितना दिन का कर रहे हैं, 2 दिन का। अगर इसने 2 दिन का अगर डिफाइन किया, आपने कभी देखा है क्या मैसेज क्यूज जाके, पॉइजन क्यू, मैसेज क्यू, रिमोट क्यू, लोकल क्यू, ये आते हैं ना मैसेज क्यू में एक्सचेंज पे। आपने कभी एक्सचेंज ऑन प्रेमिस एक्सचेंज 2010 या 2016 को अगर ओपन करते हैं, ठीक है, वहां पे हाँ क्यूज रहते हैं, रिमोट क्यू, लोकल क्यू, पॉइजन क्यू। पॉइजन मतलब डेंजरस मेल, वो जो भी कुछ भी करप्टेड रहते हैं ना, वो दैट इज कॉल्ड है पॉइजन। वो 24 आवर्स तक का वो क्यू में रहेगा, बाद में ऑटोमेटिक पर्ज होएगा। उसी तरह यहाँ पे जो भी आपने सबमिशन किया, गूगल को भेजा फॉर एग्जांपल, वो मेल 2 डेज तक का एक्सपायरी नहीं होगा, इट विल ट्राई टू डिलीवर। अगर उसमें होता है तो ठीक है, अगर 48 आवर के बाद भी नहीं होता, देन इट विल कम एज एनडीआर फॉर यू। तो यहाँ पे वो सट है, मैसेज जो सेंड जो करते सबमिशन होने के बाद, एक्सपायरेशन कब हो रहा है, 2 दिन के बाद। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, अगर चाहिए तो 2 डेज के लिए 1 डेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब सेंडिंग, नोटिफाई, मतलब सर ये मतलब एक्सपायरेशन मतलब ये सेंडिंग करता रहेगा क्या मैक्सिमम वैसा नहीं, हाँ मतलब? उसका ट्राई करते रहेगा, उसका डिफॉल्ट इंटरवल है ना अपना, रिट्रीव आउटबाउंड कनेक्शन कितना है, ये अपना 10 मिनट को है ना, वो ट्राई करते हाँ रहेगा। ऐसा ही वो अपना वहां पे मतलब वो। क्यू में ट्राई वो करेगा, जब तक अवेलेबल है तो करते रहेगा वो टाइम तक। फिर 48 डेज तक भी वो नहीं डिलीवर कर पाया तो देन यू यू विल गेट ए एनडीआर। वो बोलेगा कि ये ड्यू टू सम, ये वो आएगा पर इन्फॉर्मेशन हमने जैसे वो एक्सेस। अटेम्प्ट तो 6 ही लगाए तो फिर कैसे होगा सर? क्या क्या? नहीं नहीं ट्रांजिएंट फेलियर नहीं, रिट्राई। ये ट्रांजिट ये अलग है। ट्रांजिट मतलब ये सर्वर से दूसरे सर्वर का। इफ यू हैव अच्छा। मल्टीपल सर्वर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तुम पहले वाला नहीं देख रहे क्या, हाँ 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 रिट्रीव का, रिट्राई हाँ। रिट्रीव। रिट्राई इज डिफरेंट। ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब वन सर्वर टू अनदर सर्वर। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते ट्रांजिट करते ना, वन हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू लोकल एयरपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी इफ यू हैव मल्टीपल सर्वर, अभी तुम्हारे पास जस्ट मैं एग्जांपल बता देता हूँ, you have the 2 mailbox. My mail हम्म, box is created once, one number one, your mailbox created on the number two, right? So if I'm sending mail, so it will go directly to your mailbox, no, it will go via the server only, right? It will go the have हम्म, transfer, it will use, so it is a transition, so one server to another server, उसका वो है। तो वो फेलियर तो अच्छा। ज्यादा नहीं होगा ना आपका, तो अप टाइम प्रॉपर रहेगा, इंटरनल नेटवर्क पे रहता है उसका है वो, ठीक है। हम्म, तो अभी नोटिफिकेशन क्या है, ये नोटिफाई सेंडर व्हाइल मैसेज इज डिलेड आफ्टर 4 आवर। तो एक नोटिफिकेशन का है ये, अगर आप लोगों को वो बोलेगा कि तुम्हारा मेल डिलीवरी होने के लिए लेट हो रहा है, आता है मैसेज ये अगर ये हम लोगों ने एनेबल करते हैं तो, ठीक हम्म, है। आउटबाउंड कनेक्शन रिस्ट्रिक्शन, देखो यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते, क्या है, मैक्सिमम कनकरेंट कनेक्शन, मतलब तुम्हारा कंटिन्यूसली अगर एक मेल से 1000 तक ही आपका कनेक्शन होएगा, ठीक है, इससे ज्यादा मतलब कभी कभी होता है ना स्पैमिंग वगैरह करते लोग, तो हम लोग रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। तो आपको पता है कि मालूम नहीं, ऐसा भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप दिन में इतने मेल भेज सकते हैं, 500 हाँ 400, हाँ उससे ज्यादा नहीं, मालूम है ना आपको। हाँ, हाँ हाँ तो हमारे ऐसे, वैसा ही हाँ है। है ना, हाँ, क्योंकि ड्यू टू स्पैमिंग, अगर तुम स्पैम कर रहा तो इट विल ब्लॉक इट। अभी नॉर्मली कैसा, एज ए नॉर्मल यूजर कितना भेजेगा, 50 100, एज यू इफ यू टेक योर एग्जांपल, आप कितना भेज सकते हैं, 100 50 मेल आप भेजेंगे दिन में, करेक्ट ना। तो एक हम्म, उसके लिए हम हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिट रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि इससे ज्यादा भेजा तो इफ लाइक यू मे बी यू आर गोइंग दैट बिहाइंड, देन यू माइट बी स्पैमिंग, सो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस है। एंड और दूसरा क्या है, मैक्सिमम कंकरेंट कनेक्शन पर डोमेन। तो पर डोमेन का भी है, मतलब एक डोमेन को तुम 20 का कनेक्शन हो सकता है एट ए टाइम, उससे ज्यादा नहीं। तो कुछ भी स्पैमिंग के लिए अपन ये रिक्वायर्ड, मतलब क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाले, ऐसा है इतना कनेक्शन ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक ब्लॉक करेगा, तो वो तुम स्पैम नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में यहाँ पे है डोमेन का ट्रांसपोर्ट मतलब लॉस। मतलब समझ में नहीं हाँ आता बोलो। डोमेन का हाँ कॉन्करेंट ओके, कनेक्शन। हाँ हाँ, अभी एक डोमेन है wipro.com है, ठीक है, हाँ उसके साथ 20 कनेक्शन होएगा, उससे ज्यादा नहीं होएगा। कंकरेंट मतलब एट ए टाइम, एट ए टाइम अच्छा। कनेक्शन।
अभी जैसे 10-20 मेल्स जा रहे हैं तो कनेक्टिविटी हो रहा है ना उसका, 20 मेल जा हाँ रहा है तो हाँ 20 कनेक्टिविटी हो रहा है, राइट। उसी तरह अभी हाँ 30 मेल भेज रहे हैं तो वो रुकाएगा तुमको, इट विल नॉट अलाउ यू, बिकॉज मतलब तुम स्पैमिंग कर एक ही रहे। मेल आईडी से एक ही मेल आईडी से 30 मेल हाँ, या भेज एग्जैक्टली पड़ा एग्जैक्टली। है। अभी इफ यू आर सेंडिंग 1000 मेल, तो क्या हो रहा है, 1000 कनेक्शंस बन रहे हैं ना, तो देन इट विल रिस्ट्रिक्ट, तुमको 1000 भेजने की क्या जरूरत है एक ही टाइम एक डोमेन पे, करेक्ट ना। हाँ 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 नॉर्मल यूजर कितना भेजता है, अभी आपने एक भेजे विप्रो को, तो और एक 2 मिनट के बाद भेजेंगे, 5 मिनट 10 मिनट क्या 20 अपना 20 मेल भी भेजेंगे तो घंटे में, राइट। तो उससे ज्यादा तो नहीं, हम्म, बस 1500। स्पैमिंग वाले कैसा करते हैं, 10,000 एकदम लाखों में मेल स्पैम करते हैं, करेक्ट ना। तो ये सब हाँ अवॉइड करने के लिए हम इस तरह कनेक्टिविटी का इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन ऐसा है, ठीक है। हाँ ये नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लॉस। ट्रांसपोर्ट लॉस का पता रहेगा आपको, मतलब अपने मैसेज ट्रैकिंग वगैरह करते हैं ना, ये यहाँ पे आके बैठता है, पता है ना आपको। मैसेज ट्रैकिंग कैसा करते हैं, जैसा कि अभी किसी का मेल नहीं मिला, जैसा कि मुस्तफा आपको भेज दिया, तो मैंने कंप्लेंट किया कि मेरा मेल ही नहीं गया उसको सामने वाले को, जैसा कि हर्षल को। सो हाउ विल हाँ वेरीफाई whether mail is delivered or not, or maybe some mails are coming from external site, right, out of domain, it is not local domain. Then somebody HR team is telling, okay, one candidate sent a mail but I have not received, but candidate telling me that that mail is already sent, it is showing in the sent item as well. So how will verify, how will justify to your HR team कि ये mail आया या नहीं आया, maybe it is you can't say okay it is come to our organization or not delivered, or it is gone to quarantine or spam something. So what we have to do, we have to track the message that we will cover in the hub transport message tracing, but that log will be stored, path would be here, this is the default path। अच्छा मैसेज ट्रैकिंग का ये 30 डेज का आपको लॉगिंग मिलेगा, इट विल बी 30 डेज डिफॉल्ट, राइट। ये कनेक्टिविटी लॉगिंग, ये मैसेज ट्रैकिंग का लॉग है। और ये कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी बनता है ना, जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से कुछ इश्यू आता है वो सब यहाँ पे लॉग बनेगा। और मतलब मैक्सिमम 30 प्रोटोकॉल्स डेज का का ही कर सकते हैं क्या हम ट्रेस? ज्यादा भी ज्यादा कर भी? सकते हैं, बट वी हैव टू स्पेस कंज्यूम होएगा ना आपका, लॉग्स बहुत स्पेस लेता है, राइट, क्योंकि हर इसका लॉग बन जाता है, करेक्ट ना। वो एक्सटेंड कर सकते हैं, 60 डेज में कर सकते हैं, बट वी हैव टू जो स्पेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, यानी तो ये लॉग का पाथ है ना डाइवर्ट करना पड़ेगा दूसरे पार्टीशन में, कि वो स्पेस सर जिधर ज्यादा है उधर। वो स्पेस ऑप्शन का है सर उसका, फिर वो बढ़ाने का? बढ़ाने का मैं बताता हूँ, अपने लॉगिंग का है वो 30 डेज का, यहाँ पे नहीं दिखा रहा हो, मैं बताता हूँ, देखो ये पाथ भी आपको चेंज कर सकते हैं, दिख रहा है ये लॉग पाथ, हाँ वहां पे वो डिले रहेगा, जैसे आईएस लॉग्स पता रहेगा आपको, आईएस लॉग के जैसा ही ये भी एक लॉग्स है। आईएस लॉग कितना इरेक्ट पब में जो कितना बन जाता है, राइट, बहुत ज्यादा स्पेस खाता है, करेक्ट ना। हाँ तो वैसा ही लॉग्स है, ठीक है। ये भी कनेक्टिविटी का लॉग्स है और प्रोटोकॉल का लॉस है, ये इट इज जस्ट डायग्नोस्टिक के लिए काम में आता है, एसएमटीपी का सेंड का है ये बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब ये कभी तुमको कुछ इश्यू आ रहा है तो ये तुम लॉस को, ये रिसीव का है, एसएमटीपी रिसीव, सेंड एंड रिसीव का, ठीक है। ये हाँ डिफरेंट टाइप्स का अपने लॉग्स है, ठीक है, क्लियर, राइट, यहाँ पे कुछ लॉग्स के हाँ रिलेटेड। ओके, अभी आउटलुक एनीवेयर, आपको पता है आउटलुक एनीवेयर क्या होता है। अरे ओल्ड वर्जन था ना आउटलुक का, कुछ तो ऐसा कुछ। हाँ, ओल्ड वर्जन था, राइट, बट कहाँ पे यूज होता है कुछ बता सकते हैं आप, कैन नहीं एक्सप्लेन। नहीं नहीं नहीं। नहीं, ओके, नो इश्यू। सो आउटलुक एनीवेयर actually is used for accessing outlook from external, like from home or public network। अभी जैसा फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू लिटिल बैकवर्ड 5 to 6 years में, आपको पता है हम लोग आउटलुक क्लाइंट एक्सेस नहीं कर सकते थे बाहर से, मतलब घर से। अभी हम आउटलुक क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं, वेबमेल करते थे, आपको पता रहेगा तो, अगर मालूम है मेरे को। सो अर्लियर यूज्ड टू एक्सेस दी वेबमेल और वो आउटलुक वेब एक्सेस जो बोलते हैं या वेबमेल बोलते हैं। हमको हाँ आउटलुक अलाउड नहीं था, अलाउड ना था, वो फ्यूचर नहीं था। देन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द आउटलुक एनीवेयर। मतलब अगर आप आउटलुक एनीवेयर अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो देन इट विल कनेक्ट योर आउटलुक फ्रॉम द एक्सटर्नल आल्सो। मतलब तुम घर पे बैठ के पब्लिक नेटवर्क से आउटलुक एनीवेयर की हेल्प से आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक सेम इन ऑफिस जैसा हम कर सकते हैं। तो उसका काम है, आउटलुक एनीवेयर का काम है, समझ गए। तो डिसेबल किया जाता है क्या सर ज्यादातर, और हमारे इधर
क्योंकि कुछ हाँ कुछ करता है ना, आता है करते रिपोर्ट तो येल्टो वाले डायरेक्ट नहीं बोलते, हाँ वो बंद हो गया बोलते हो डायरेक्ट। हाँ। एक्चुअली कैसा है देखो मैं बताता हूँ तुमको। आउटलुक एनीवेयर मतलब लाइक तुम जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक मिनट हाँ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोल बेटा। हेलो समी। हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि अब आउटलुक एनीवेयर मतलब तुम्हारा आउटलुक जो है और घर से भी कनेक्ट होता है, तो तुम क्या भी मेल्स डाउनलोड कर सकते हैं या अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। पर्सनल डेटा रहता है वो जो मतलब ऑफिस का डेटा तुम यूज कर सकते हैं। उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस रहता है नॉर्मली कि आउटलुक आप एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं तो अटैचमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते, बहुत सारे। उसके लिए ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ये चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसको कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगर करने के लिए जो आउटलुक वेब ऐप का जो यूआरएल रहता है ना, जो तुम पब्लिक जो पब्लिश करते हैं वो यूआरएल यहाँ पे अपने को डालना है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके हेल्प से वो आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड होएगा। गॉट इट। सर सॉरी, कॉल आया था, 1 मिनट। यहाँ नहीं पे क्या समझा। करना है? यहाँ पे हाँ। आपका आउटलुक वेब मेल एक्सेस करते राइट, आपका यूआरएल रहता ना HTTPS हाँ हाँ :/mail डॉट समथिंग डोमेन ऐसा हाँ रहता हाँ है राइट। हाँ हाँ। वो यूआरएल यहाँ पे डालना है। तो वो यूआरएल की हेल्प से अभी एक्सटर्नल पे कनेक्ट करना है तो तुमको पब्लिश करना पड़ेगा ना वो डोमेन। तो वेब मेल पे तो पब्लिश करते हैं ना आपने, जैसा कि mail.wipro.com समथिंग लाइक दैट कुछ तो रहेगा ना। तो वो यहाँ पे अगर डालेंगे तो वो यूआरएल यूज करके आउटलुक कॉन्फ़िगर होएगा वो। समझ गए। पब्लिकली यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। Outlook Anywhere allows your user to connect to the Exchange mailbox via Outlook. Specify the external host name, example contacto.com, that users will use the connect your organization। मतलब contacto की जगह में wipro.com आएगा अगर तुम्हारा wipro का फॉर एग्जाम्पल है तो ये ऐसा यूआरएल बनेगा। यहाँ पे अपन उसको स्पेसिफाई करेंगे जब यूजर कनेक्ट करेगा। ये अगर अपन सेटिंग्स एनेबल करते हैं तो यूजर जैसा कनेक्ट करेगा आउटलुक बाहर से, आउटलुक एनीवेयर की हेल्प से वो आउटलुक एक्सेस कर पाएगा एक्सटर्नली। ठीक है। अच्छा, मतलब उसके तो लेकिन सब सर मतलब एलो ही रहता है ना बाकी यूजर्स को भी, अगर वो आउटलुक नहीं उनके पर्सनल लैपटॉप में करते हैं तो हाँ कॉन्फ़िगर। मैं बोल रहा हूँ अलो रहता है, अगर ये कॉन्फ़िगर करे तो अलो रहेगा। अगर अपन आउटलुक एनीवेयर को डिसेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा नॉर्मली अच्छा अभी तो सब लोगों का है, अभी सब लोग आउटलुक घर से कर सकते, पहले नहीं था। अभी अच्छा आउटलुक एनीवेयर ये है। और अपना ऑफिस 365 बाय डिफॉल्ट आप घर से आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्यों? आपका HTTPS प्रोटोकॉल से यूज हो रहा है, करेक्ट। हाँ वेबमेल हाँ भी हो रहा है, आउटलुक भी HTTPS कर रहा है, करेक्ट ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब हाँ इधर तो एच टी यहाँ टी पे, पी वे डॉट को डॉट इन डाल देने का तो हो जाता है ऐसा है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसा है, आपको आउटलुक एनीवेयर अगर कॉन्फ़िगर करना है या नहीं करना है आपके डिपेंड है। अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका यूजर्स घर से आउटलुक चेक कर सकते, यूज कर सकते हैं, नहीं तो वेबमेल ही रहेगा। अगर नहीं करें तो फिर आप वो यूजर्स को एक्सेस मिलेगा, ऐसा डिपेंड है। ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरा बोलने का मतलब, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का टाइप्स है, आपको पता है ना। ऑथेंटिकेशन बेसिक, एनटीएलएम, नेगोशिएट। एनटीएलएम अपने को एक्सटर्नल से अगर अपने को करना है तो एनटीएलएम रहेगा। बेसिक मतलब एकदम प्लेन टेक्स्ट का रहेगा। नेगोशिएट मतलब मिक्स रहेगा, केरोबरेस प्लस एनटीएलएम। केरोबरेस V5 प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है, अपने इंटरनल डोमेन ऑथेंटिकेट होता है ना, इंटरनल यूजर्स जो लॉगिन करते हैं डोमेन पे, वो केरोबरेस V5 प्रोटोकॉल यूज होता है। ये एनटीएलएम कहाँ से होता है, जब ये बाहर से ट्रैफिक आती है ना, पब्लिक ट्रैफिक जो वेब बेस्ड ट्रैफिक, वो एनटीएलएम केरबरस V5 को नहीं काम करे। केरबरस V5 ओनली वर्क्स फॉर दी डोमेन जॉइंट मैसेज, मतलब लोकल नेटवर्क पे ही काम करेगा केरबरस V5। और एनटीएलएम जो वेब बाहर से जो भी रहेगा वो यूटिलाइज होएगा। ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे तो हम विल डिस्कस लिटिल मोर। कुछ आपको नहीं डाउट सर, है कहीं पे? नहीं 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 ना, नहीं गुड। सर, और ठीक सर है तो इतना ही था कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो है ना वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा डाउट। ये एक्सटर्नल ना, मतलब हाँ, नहीं ऊपर ऊपर वाला था। हाँ ये हाँ, हाँ हाँ ये ना स्पेसिफाई द हाँ एक्टर, हाँ
बराबर ना। आप यहाँ पे एक्सटर्नल को कॉन्फ़िगर करना है, जो भी आपका वेबमेल का रहता है ना वही हम पे यहाँ डाल। अभी फिलहाल ये आउटलुक एनीवेयर डिसेबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला नहीं कुछ भी, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब अभी समझे ना। नहीं सर, सपोज मैं अभी एसबीआई में हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल में एसबीआई का डालना पड़ेगा क्या? नहीं, आप किसका मेल सर्वर यूज करते हैं, एसबीआई का यूज करते हैं कि विप्रो का यूज करते हैं? एसबीआई का करता हूँ मैं उधर। आप एसबीआई, हाँ, तो इनका एसबीआई का जो एक्सचेंज सर्वर है ना, वहां पे वे लोगों ने एसबीआई का वो यूआरएल डाला है डिटेल। आपको एक्सेस है क्या एक्सचेंज का? हाँ कभी रहेगा ना, आप काम करो, मैं बताता हूँ आपको। ये सर्वर्स के टैब में राइट क्लिक जाने का, आउटलुक एनीवेयर में यहाँ पे क्या डाला देखो, एक तरफ तुम्हारा वेब मेल का जो यूआरएल तुमको पता रहेगा एसबीआई का, वही यूआरएल यहाँ पे रहेगा वो। अच्छा अच्छा। समझ गए? हाँ हाँ। कंफ्यूज है क्या अभी? नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हम्म, सो ये हमारा सर्वर्स का पार्ट है, राइट। तो yes। क्या कंटिन्यू करेंगे? नहीं, अभी टाइम है ना अपने को, हाँ अभी भी, हाँ अभी हाँ टाइम, राइट, अभी टाइम है, ठीक है। ओके, सर्वर, सो ये इसका डिटेल्स हुआ। अभी हम जाएंगे डेटाबेस पे। मतलब अभी आप एक्सेस सर्वर का देखा, अभी डेटाबेस का प्रॉपर्टीज हम जाएंगे, ठीक है। हम्म, एक डेटाबेस को हम लोग प्रॉपर्टीज ले लेंगे, चेक करेंगे अभी, जैसा कि कोई भी एक डेटाबेस अपने को ये ले लेंगे, ये माउंटेड है। देखो इसमें मैंने एक मिनट, अभी ये डेटाबेस को ऐसा क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा रहा है, हाँ राइट। ये बता रहा है सर्वर मेलबॉक्स डेटाबेस एक्टिव माउंटेड है, कॉपी क्यू लेंथ, कंटेंट इन स्टेटस फेल्ड एंड सस्पेंडेड। मतलब कॉपी क्यू लेंथ मतलब कॉपी, मतलब अभी कैसा है, डैग में डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप में कैसा रहता है, एक डेटाबेस माउंटेड रहेगा, दूसरा कॉपी जैसा, मतलब यहाँ का कंटेंट वहां पे रिप्लिकेट होते रहेगा, करेक्ट ना। हाँ। तो वो अभी फिलहाल वो बोल रहा है ये फेल्ड है क्योंकि मेरा दूसरा सर्वर चालू नहीं किया मैंने। वो जब भी वो ये यहाँ पे वो कॉपी, यहाँ का डेटा जो है ये डेटाबेस का, वो उधर कॉपी होएगा। यू डिटेल्स देखेंगे अपन। ये इसका स्टेटस है, माउंटेड है, कॉपी क्यू लेंथ 0 है, रिप्ले जो लेंथ जो क्यू रहता है उसको रिप्ले करते हैं हम लोग। लास्ट अवेलेबल लॉग 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 टाइप नहीं है कुछ भी, कुछ इंस्पेक्टेड हुआ है क्या, नेवर। लॉस्ट कॉपी का जो नेवर, अभी तक ये नहीं हुआ क्योंकि मैंने दूसरा सर्वर को स्टार्ट नहीं किया, उसके लिए वो कॉपी नहीं हुआ उसका। तो अभी हम इसका प्रॉपर्टीज समझेंगे कि क्या क्या रहता है इसमें। तो मैंने एक को एडिट करता हूँ, ओके। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। जनरल में क्या है, मेल बॉक्स डेटाबेस का नाम है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी अपने को करना है अपने हिसाब से, जैसा DB01 DB02, जो भी अपने हिसाब से अपन रख सकते हैं, इसका कुछ कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं, आपका इन्वायरमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप कर सकते हैं। ये डेटाबेस का पाथ है, दिख रहा है आपको, हाँ .edb के साथ में एंड हुआ। ये मेल बॉक्स डेटाबेस जो है ना, उसका नाम के साथ में उसका .edb रहेगा, ये लास्ट में दिख रहा है आपको .edb है। edb मतलब एक्सचेंज डेटाबेस का फाइल का एक्सटेंशन है, .edb ये फाइल का एक्सटेंशन बोल सकते हैं आप, .edb फाइल में स्टोर होता है, करेक्ट। हाँ अभी ये लास्ट फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप नहीं हुआ, अगर यहाँ पे होता है आपका नॉर्मली प्रोडक्शन सर्वर्स में होता है तो यहाँ पे डेट आएगा, मतलब अभी जैसा कि आज सैटरडे, राइट, तो फ्राइडे का डेट आएगा, या फुल बैकअप अगर रहा तो फुल का रहेगा, वहां पे स्टैम्प होगा टाइम, अगर इंक्रीमेंटल आए तो इंक्रीमेंटल होएगा। बट अपने पास इस पे बैकअप नहीं हुआ, उसके लिए वो नहीं बताएगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। अभी स्टेटस क्या है, माउंटेड है, अगर यहाँ पे फेल्ड है डिसमाउंटेड है तो ये स्टेटस आपको बताएगा, बट अभी ये माउंटेड है, उसके लिए क्या बोल रहा है, माउंटेड है स्टेटस, मतलब उसका करंट स्टेटस क्या है। अभी ये कौन से सर्वर पे माउंटेड है, अगर आप ये एक सर्वर है तो ठीक है, आपको पता है कि इस पे, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, मोर देन 1 सर्वर है, 2 सर्वर है, तो यहाँ पे आपको समझ में बताएगा कि कौन से सर्वर पे ये माउंटेड है। तो ये माउंटेड कहा EXCH01-26.digitaltraining.in, मतलब ये अपना डोमेन है, तो ये सर्वर पे माउंटेड है। आपको समझने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए ये तुमको डिटेल समझ में आएगा कि कहाँ पे माउंटेड है।
और इसका मास्टर सर्वर कौन सा है, सेम है EXE। मास्टर सर्वर मतलब जो वो कहाँ पे माउंटेड है और वो डेटाबेस क्रिएटेड है, तो वो मास्टर सर्वर बोलते हैं। एक मास्टर होता है, एक सेकेंडरी सर्वर होता है। मतलब सेकेंडरी इज नथिंग बट कॉपी टाइप, इसका डेटा उस सर्वर पे जा रहा है, उसके डेटाबेस पे जा रहा है। अभी सेम ये डेटाबेस का कॉपी बनेगा, जब भी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या कॉपी वाला। बट मास्टर तो एक रहेगा, मास्टर ये आइडेंटिफाई कर रहा है मास्टर बोल के। और मास्टर टाइप क्या है, सर्वर है, और ये मॉडिफाइड डेट वगैरह है। अभी सर्वर होस्टिंग की कॉपी आप जिस डेटा पे ये बोल रहा है किस पे होस्ट कर रहे हैं, तो ये सर्वर पे होस्टिंग है, दूसरे सर्वर है। अभी ये फिलहाल डाउन है, ठीक है, तो हम वो बाद में देखेंगे इसका, जब ये मैं आप करूंगा दोस्तों। ये मास्टर AEXCH ये बोल रहा है, और इस पे इसका कॉपी है। बट हम एक्चुअली क्या है, अभी तक डैग का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, उसके लिए कॉपी भी नहीं होगा, हमको डैग बनाना पड़ेगा। देन ये मास्टर एक रहेगा और एक कॉपी रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ जनरल। अभी मेंटेनेंस में क्या आता है, टैब देखेंगे। मेंटेनेंस पता है ना आपको, वो मेंटेन करता है, जो भी स्कैनिंग करता है, कुछ भी करप्शन है कुछ है सब उसको फिक्स करता है। उसको बोलते हैं अपन ESC स्कैनिंग, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन बोलते हैं हम इसको। ये बैकग्राउंड में मेंटेन करता है तुम्हारा डेटाबेस को हेल्दी रखने के लिए। हम वो जब भी होता है तो थोड़ा लोड आता है सर्वर पे, क्योंकि एक अपना एंटीवायरस स्कैनिंग कैसा होता है वैसा ही ये भी एक वैसा है, स्कैन करता है डेटाबेस। उसके लिए हम उसको मतलब हेल्थ टाइमिंग डिफाइन रिपोर्ट कर सकते आता हैं। है तो हेल्थ रिपोर्ट इससे निकलता है क्या, वो क्या नहीं, अलग से इससे होता नहीं निकलता। हेल्थ हेल्थ रिपोर्ट के लिए वो लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, डेटाबेस हेल्थ स्टेटस की बात करें ना आप। है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, गेट हाइपर मेलबॉक्स डेटाबेस स्टेटस बोल के एक ये आता है, उसको एक लोग ने पावर शेल स्क्रिप्ट बना के शेड्यूलर में डालते हैं। तो वो शेड्यूलर रन होता है, वो टाइमिंग जो देते हैं आपका मॉर्निंग एक टाइम इवनिंग, तो फिर वो डेटाबेस का स्टेटस बताएगा, माउंटेड है, फेल्ड है, कॉपी ये। बट ये अलग है, ये बैकएंड में चलता है, ये हमारा हमको नहीं दिखता एक्चुअली, ये रन करता है। हम ये ऑफ आवर्स में करते हैं, जैसा कि अपना वर्किंग आवर्स कितना है 9 to 6 आवर्स है, तो हम लोग रात में 10 बजे या 11 बजे लगा सकते हैं, डिपेंड अपना कैसा है। तो यहाँ पे डिफाइन अपन टाइमिंग कर सकते, तो क्या हो जाएगा, लोड नहीं आएगा, एक्सचेंज पे परफॉर्म इश्यू नहीं मिलेगा। उसके लिए देखो ये कर सकते हैं। और बाद में दूसरे ऑप्शन पे डोंट माउंट दिस डेटाबेस स्टार्टअप, जैसा कि आप पता है ना सर्वर को एक टाइम रिबूट होता है तो ऑटोमेटिक डेटाबेस माउंट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे को माउंट कराना नहीं है तो आई कैन सेलेक्ट दिस चेक मार्क, डोंट माउंट दिस डेटाबेस स्टार्ट। अगर आपको मैन्युअली माउंट कराना है देन यू कैन सेलेक्ट दिस चेक मार्क, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक माउंट होएगा जैसा ही सर्वर बन जाता है। तो मैन्युअली मतलब कहाँ से का मतलब, वो दूसरी जगह हाँ से मैं सिलेक्ट बताता होगा? हाँ मैं बताता हूँ मैन्युअली कहाँ से करता हूँ, ये जस्ट याद रखो, मैं बताता हूँ आपको मैन्युअली कहाँ से करते हैं, ठीक है। ये हुआ। और ये जो है रिस्टोरेशन के टाइम में काम में आता है, दिस डेटाबेस कैन बी ओवररिटन। अभी तुम्हारा डेटाबेस करप्ट हुआ, ठीक है, आपको रिस्टोर करना है लास्ट बैकअप का। तो जब तुमको रिस्टोर जब करते ना ये डेटाबेस को, जब ये चेक मार्क को सेलेक्ट करना है, दिस डेटाबेस कैन बी ओवर रिटन बाय रिस्टोर, मतलब जो भी रिस्टोर होगा वो रिटर्न होगा, मतलब वो पहले का डेटा तुम्हारा है वो रिटर्न करेगा विद द एग्जिस्टिंग बैकअप के साथ में, करेक्ट ना। इसको ये चेक मार देना, जब रिस्टोर के टाइम में काम आएगा, बाकी टाइम में काम नहीं आएगा। अच्छा, एनेबल सर्कुलर लॉगिंग पता है आपको क्या होता है? नहीं। ओके, आपको पता है जैसा भी मैं मेल्स लिखता हूँ, जैसा कि मैंने सेंड इशू होते हैं मेल, वो कहाँ डायरेक्ट डेटाबेस में जाते हैं या और कहीं जाते हैं? वो तो आप रोल्स और वैसे बोल रहे हैं या कैसे मतलब? नहीं नहीं वैसा नहीं, रोल्स से नहीं, नॉर्मली अभी तुम्हारा मेल बॉक्स कहाँ पे रहता है, कहीं पे एक पार्टीशन में क्रिएट करते हैं मेल, सॉरी डेटाबेस, डेटाबेस अंदर मेल बॉक्स रहता है, करेक्ट ना। हाँ। तो जैसा कि हर्षल का मेल बॉक्स है एक DB01 पे, मुस्तफा का मेल बॉक्स है DB02 पे, मैंने एक मेल भेजा आपको, जैसा ही वो तो प्रोसेस नहीं चाहिए मेरे को, जैसा कि DB01 D ड्राइव पे है, DB02 E ड्राइव पे है, तो मैंने भेजा, जैसा मैं आउटलुक से किया ओपन, तो आपको तो मेल जाएगा, राइट, आपके आउटलुक में दिखेगा, करेक्ट, मतलब आपका मेल बॉक्स जो है डेटाबेस का D ड्राइव पे है, तो वो डायरेक्टली डेटाबेस को राइट करेगा, आपका कंटेंट जो भी तुम्हारा मेल्स जो आया सो, या कहाँ पे राइट करेगा, पहले ऐसा पूछ रहा था, स्टोर करेगा, सेव करेगा,
कमिट करेगा, कहाँ पे कमिट करेगा। ठीक है, ये एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नॉर्मली कैसा होता है, अभी जैसा कि मैं भी अगर लॉजिकली बोलूं, अरे वो तो डेटाबेस में रहेगा मेल्स मेरा, यानी तो मेरे मेल बॉक्स में जाके रहेगा, करेक्ट, ये अपने को लॉजिकली ऐसा ही समझ में आता है, करेक्ट ना। हाँ। बट ऐसा नहीं होता है। सो व्हेन यू सेंड द मेल, वो ट्रांसपोर्ट रूल वगैरह यूज होता है, अब ट्रांसपोर्ट दैट इज अ डिफरेंट केस, बट दैट मेल विल गो टू द ट्रांजैक्शन लॉग्स। 10 MB का ट्रांजैक्शन लॉग्स होता है आपका, वहां पे जाएगा, देन सीक्वेंस वाइज इट विल कमिट टू योर डेटाबेस, not immediately go to your database. Just I will send the mail, then it will not go directly to your DB01 database. It will go to the transaction logs. Transaction log will be committed into sequence wise. जैसा कि 1 2 3 4 इस तरह है, तो नंबर 1 कमिट होगा, नंबर 2 कमिट होगा, 3 4 इस तरह, बिकॉज इट विल नॉट गिव द लोड ऑन द डेटाबेस। ठीक है, अगर डायरेक्टली कमिट हो रहा है देन देयर इज अ ह्यूज परफॉर्मेंस इशू आएगा, क्योंकि आप एक ही यूजर नहीं है, वो डेटाबेस में 1000 मेल बॉक्स है, देन 1000 मेल्स आएंगे, तो देन इट विल कमिट टू दैट डेटाबेस। सो हाउ दैट डेटाबेस विल स्टोर और कमिट दैट योर कंटेंट immediately? Not possible. That's why your content will go to the ट्रांजेक्शन फाइल। वो हम लोग डेटाबेस के पाथ में जो है ना फाइल्स बनते हैं, वहां पे मैं बताता हूँ कैसा रहता है। तो इन शॉर्ट टेलिंग दैट वो ट्रांजेक्शन बनेगा, फिर वो कमिट होएगा, और वो पर्ज कब होएगा, लॉग्स, पर्ज कब होएगा लॉग्स, पता है आपको? पूछेगा ये क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली पर्ज होएगा या हाउ इट पर्जेस लॉग, ट्रांजैक्शन लॉग्स। ठीक है, नो इश्यू। तो पर्ज कब होएगा, वही मैं एनेबल सर्कुलर लॉगिंग के लिए थोड़ा उसके लिए समझा रहा था, रिकमेंडेड है या नहीं है। पर्ज जब होएगा आपका बैकअप होएगा, जैसा कि अभी फ्राइडे के दिन फुल बैकअप हुआ, अच्छा सैटरडे राइट, तो नॉर्मली फ्राइडे वगैरह ऐसा या सैटरडे या संडे ऐसा फुल बैकअप रखते हैं, क्योंकि फुल बैकअप टेक्स द मोर टाइम। ठीक है, तो जब भी फुल बैकअप आपका होएगा ना, तो वो ट्रांजैक्शन लॉग्स को पर्ज करेगा, और पूरा वो कमिट होएगा जब तक तुम्हारा ट्रांजैक्शन लॉग किसको होएगा, डेटाबेस को। तो मतलब लॉग्स फाइल्स का स्पेस जब भी खाली होएगा, मतलब डेली आपका लॉग्स फाइल्स 100 GB का बनेगा, बैकअप होएगा 100, देन इट विल पर्ज दी 100 GB, मतलब फ्री होते जाएगा। मतलब उसके लिए मैं बोला ना आपको, ट्रांजैक्शन लॉग्स का और डेटाबेस का पाथ डिफरेंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी आएगा, प्लस कभी जगह नहीं है, अगर 0 जगह हुआ तो डेटाबेस ऑटोमेटिक डिसमाउंट होएगा आपका, क्योंकि वो आपका राइट नहीं कर पाएगा उसके लिए। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, रिकमेंडेड वे वी हैव टू सेपरेट द डेटाबेस पार्टीशन एंड लॉग फाइल पार्टीशन, because we will get the first point performance, second point if any case there is no space in the drive, then the database will get dismounted। तो इसका मतलब आपके मेल्स बॉक्स जो कनेक्टेड है उसपे है जो भी 1000, वो एक्सेस ही नहीं होंगे। उसके लिए दैट इज रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस एज पर द माइक्रोसॉफ्ट and the scenario which is a practicable is we have to keep database and log file partition is a different। database D drive में है तो उसी का log file का ट्रांजैक्शन E drive में रखो, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, प्लस हो रहेगा। विल कम टू द नाउ सर्कुलर लॉगिंग। जैसा मैंने बोला कि लॉग फाइल्स आपका बैकअप जब होएगा तो ये पर्ज होएगा, उससे पहले पर्ज नहीं होएगा। अगर आपने 4 दिन तक बैकअप नहीं हुआ तो देन आपके लॉग फाइल ऐसा ही फाइल होते रहेंगे, अगर आपका स्पेस भी खत्म होगा। तो उसके लिए कभी कभी क्या करते हैं, एनेबल दी सर्कुलर लॉगिंग। सर्कुलर लॉगिंग क्या होता है, जैसा ही तुम्हारा वो ट्रांजैक्शन लॉग फाइल कमिट होएगा ना डेटाबेस को, वो डिलीट करेगा लॉग को। ठीक है, जैसा ही तुम्हारा समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉग फाइल्स थे, 10 अगर कमिट हुआ डेटाबेस को, देन इट विल ऑटोमेटिकली पर्ज दी दैट ओल्ड ट्रांजैक्शन फाइल, इट विल नॉट वेट टिल द बैकअप हैपन। बट एक इसमें डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? अगर फेल हो गया तो हाँ एग्जैक्टली, जब भी तुमको डेटाबेस फेल हुआ, जब भी रिस्टोर करते हो, जब तुम्हारे को प्रॉब्लम आएगा, जब भी माउंट होने के लिए वो बोलेगा मिसिंग ट्रांजैक्शन फाइल, तुम कहां से लेकर आएंगे? यू कैन नॉट ब्रिंग दैट ट्रांजैक्शन फाइल। सो दैट्स व्हाई वी डोंट रिकमेंड टू एनेबल दिस सर्कुलर लॉगिंग।
ठीक है, because when your database got failed due to some reason, it is not getting mounting or mounted, then we have to restore the current backup, right? Last जो भी होता है तुम्हारा, जिस जो भी करंट है, जैसे अभी टुडे इज द सैटरडे, देन यू लुक फॉर द फ्राइडे नॉर्मली लास्ट नाइट का. So if you don't have that transaction log for in that backup itself, then how will mount it? You cannot mount. That's why we don't recommend the enable. But ये इंटरव्यू में पूछेगा कंपलसरी, you try to remember it and try to like no उसको थोड़ा how you have to put it, your points in the interview. ये बहुत important है, whether it is recommended or not. It is not recommended, but if you want, still you can use it, but it is not recommended. Okay? सर समझ बैकअप गए ना? कब लेते हो सर, बैकअप कब लेते हो वो तो हाँ, नॉर्मली बैकअप कैसा रहता है, अगर आपका प्रोडक्शन हाउस कैसा है 6 बजे खत्म हो रहा है एग्जांपल, ठीक है, हाँ तो आपको 12 बजे 11 बजे आप बैकअप स्टार्ट कर सकते हैं. डेली डेली आपको बैकअप लेना है, वी हैव टू कीप डेली, क्योंकि आपको पता नहीं है कब कौन सा डेटाबेस फेल होएगा, करेक्ट ना? हाँ. तो हमारे तो इधर यूनिट दे, कब लेते हो तो आइडिया नहीं उसका. नहीं नहीं बैकअप होता है भाई, उसका अलग टीम होता है, बैकअप टीम विल बी डिफरेंट. वो बहुत तुम्हारा बैंकिंग का तो बहुत बहुत सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा आपको, उसका डेटा उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक दैट, तुम्हारा नॉर्मल मेल्स नहीं रहते, समझिए. बैकअप होता है, उसका टीम अलग होता है, उसका बैकअप होता है. नहीं तो उन्होंने तो स्क्रिप्ट बनाया होगा ऑटोमेटिक कुछ तो, नहीं तो हाँ, ऐसे कुछ नहीं ऑटोमेटिक होता. लॉन्च होता है, नहीं तो कुछ तो टूल रहेगा. तिवोली है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन है स्क्रिप्ट बैकअप के लिए, वो यूज होता है. स्क्रिप्ट ही तो लग रहा है उसका क्योंकि रहता वो है, तो. हाँ हाँ, IBM तिवोली वगैरह भी बहुत सारे ऐप्स हैं, वो हो जाते हैं, वो होना ही है, नहीं तो फिर तुम्हारा कभी फेल हुआ ना तो वी कैन नॉट रिस्टोर, इश्यू आ जाएगा. ठीक है, देन वी विल गो फॉर द लिमिट्स. अभी लिमिट्स तो पता है आपको, आपका जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 GB का मेल बॉक्स है, तो आपको वार्निंग कब आना चाहिए, 1.9 GB फुल हुआ मेल बॉक्स, जब वार्निंग आना चाहिए आपका मेल बॉक्स फुल हुआ, ये आपको पता रहेगा, आता है वार्निंग आउटपुट में, ठीक है ना? अभी आपका 2 GB है टोटल साइज मेल बॉक्स का, तो 1.59 जैसा हुआ फुल हुआ तो इट विल स्टार्ट गिविंग, मतलब नॉर्मली 90% का स्पेस कंज्यूम होता है, तो देन इट विल स्टार्ट गिविंग द वार्निंग, योर मेल बॉक्स इज फुल, देन प्लीज डिलीट अननेसेसरी मेल, ऐसा आता है क्या नहीं? ठीक है. और ये सेंड आइटम क्या है, प्रॉफिट सेंड टू एट जीबी कितना, टू हाँ जीबी कर गया 2 तो GB हुआ तो, जाएगा नहीं. हाँ एग्जैक्टली. और सेंड एट रिसीव तक 2.3 है, ठीक है हाँ प्रॉफिट. इसके कभी बाद कभी तो 2.34 हो जाता है, फिर भी मतलब हाँ 101% मेल बॉक्स फुल ऐसा हाँ, आता है वो. वो आता है थोड़ा, वो तो उतना वो बोलते हैं ना अपना एरर बोल सकते हैं अपन, उतना तो होएगा थोड़ा वो, बट उतना तो इस ओके फाइन, ठीक है. और कीप डिलीटेड आइटम नॉर्मली 14 डेज तक रहता है, जैसे आपने डिलीट करते हैं तो इट विल बी देयर इन द डिलीटेड आइटम फोल्डर में, कितने दिन तक रहता है 14 डेज, ये डिफॉल्ट इतना ही है 14 डेज, करेक्ट ना? सर ये मतलब सच ये जो अगर प्रोहिबिट चेंज, सेंड एंड रिसीव है तो उसमें ज्यादा भी कर सकते हैं क्या, प्रोहिबिट सेंड हाँ एंड कर रिसीव. सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ इशू पर नहीं. अगर यू कैन यूजर मेड को अनलिमिटेड भी. हाँ, अगर यूजर को F3 लाइसेंस है, उसका 2 GB स्पेस है, तो फिर कैसे होगा? अभी 2 GB का वो पूरा फेस अगर 2 GB है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, 3 GB करो, 4 GB करो, 5 GB करो, तो बाद में वो हिसाब से तुमको रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पे अप्लाई करो, ऐसा. अच्छा, समझ गए? कि मतलब वो ये कहाँ जो पे रहता कॉन्सेप्ट है है, सर? अभी एक एक्सचेंज मिनट में ना, ऐसा लिमिट नहीं है क्या, मतलब लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस और वो ऑफिस भाई के लिए इधर कुछ नहीं वो है? 360 इस पे तो ये अपन मैन्युअली कितना भी कर सकते हैं. अच्छा मतलब अभी इधर ऐसा कि 1.9 इधर कुछ भी कर सकते हैं अनलिमिटेड भी हम. रख सकते हैं, मैं अनलिमिटेड रखा, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, मतलब इसको कुछ लिमिटेज नहीं है. ये अनलिमिटेड किया मैं, उसको कुछ भी अभी आएगा ही नहीं है, आई कैन डू और दैट. वो 5 GB और वो ऐसा अगर करना है तो उसका बात हाँ, है. यहाँ पे करो ना, एक मिनट, चलिए एक मिनट, इश्यू, मतलब मैंने एंटर कर सकते हैं क्या वहाँ पे? हाँ 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 आना चाहिए, मैनुअली रहता है, सेलेक्ट, पॉपअप होना चाहिए था, एक मिनट.
इसको एकदम क्लोज कर दो, मैन्युअली आता है अपन, नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट भी अपन सेट कर सकते हैं कितना सेट द मेल पर डेटा यहाँ पे आया, अभी 5 GB किया मैंने। अच्छा। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो ये हिसाब से अपन प्रॉफिट का भी तुम मॉडिफाई कर सकते। अभी प्रॉफिट कब को होना है 4 GB फॉर एग्जाम्पल, और सेंड एंड रिसीव कब होना है 4.59 समझ लो। तो मतलब अभी थोड़ा ही 100 MB बचा है ना, तो उसके बाद उसको प्रॉफिट सेंड एंड रिसीव का कर देंगे तो वो फिर इमीडिएटली खाली करेगा, नहीं तो लोकल डाउनलोड करेगा। करेक्ट ना? हम्म। अंडरस्टूड राइट? हाँ। हाँ ठीक। ये डिलीटेड अब 30 डेज, और ये क्या है, डोंट परमानेंटली डिलीट फ्रॉम आइटम अंटिल द डेटाबेस बैक। मतलब ये एक ऑप्शन है, जैसा कि डिलीटेड आइटम्स को जब तक डिलीट नहीं हुए वो फोल्डर से, जब तक तुम्हारा डेटाबेस को बैकअप नहीं हुआ, मतलब बैकअप नहीं हुआ, तो वो एक अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी ये यूज कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि डेली तो तुम्हारा नॉर्मल बैकअप होता ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, देन तो वी विल गो बैकअप फॉर दी। ऑप्शन कहाँ रहता है इधर, ऑप्शन हो? नहीं, यहाँ पे बैकअप नहीं रहता है, वो तुम्हारा एक्सचेंज का बैकअप वो इधर तुमको थर्ड पार्टी से करना है या तुमको विंडोज बैकअप से करना है, तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे जब हम टाइम स्टैम्पिंग देखे थे ना डेटाबेस के इसमें, सर्वर के इसमें, लास्ट फुल बैकअप, लास्ट इंक्रीमेंट बैकअप, वहाँ पे टाइम स्टैम्प होएगा, ये ऑटोमेटिक अपने को वो वहाँ पे आ जाएगा जैसे ही बैकअप होता है। तो अच्छा। बैकअप का ये एक तो तुम्हारा विंडोज सर्वर बैकअप से ले सकते हैं विंडोज का, ये एक तो थर्ड पार्टी से ले सकते हैं। करेक्ट ना? सही है? हम्म हम्म। कंफ्यूज है क्या हर्षद? नहीं, इधर ऑप्शन ही नहीं आता, मतलब ये नहीं एक्सचेंज इधर सर्वर नहीं इंस्टॉल आता ना, करने में। नहीं 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 इधर नहीं आता अच्छा। है, ऑप्शन इधर नहीं आता है बैकअप। आपको बैकअप लेना है थर्ड पार्टी से हाँ, लेना है या विंडोज से, सिर्फ आपको टाइम स्टैम्प आएगा, मैं बताता हूँ कहाँ पे वो आता है बैकअप होने के बाद। मतलब बैकअप ये मतलब हुआ। वो क्या करते हो, ईडीबी फाइल का रहता है क्या? हाँ ईडीबी, हाँ ईडीबी फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल्स को लेता है बैकअप। अच्छा मतलब, अच्छा वो जीबी में भरता होगा फिर वो हाँ डायरेक्ट। फिर जीपी वही तो मैं बोला ना आपको, स्पेस बहुत देता है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन फाइल्स का होता है, ये बात में जाए। ये लिमिट्स हुआ। हम्म। तो एक्सचेंज का तो डेटा उसके लिए तो तुमको 2 GB 1 GB देते ना, स्टोरेज कितना देते, 1 ही GB देते ना। आपको हाँ एक पहले तो हमको जब काम करते 100 MB मिलता था हमको रोज, जैसा वीक में एक टाइम हमको खाली ही करना है, नहीं तो डाउनलोड करके पीएचडी में रखना है उसके लिए। अभी हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का जब से आया तो 100 GB मिल रहा है, नहीं तो पहले किधर मिलता था 500 MB, हाउ 100 MB, वो भी अप्रूवल चाहिए रहता 500 MB लेना है तो कई के लिए तुमको जस्टिफिकेशन को। तो वैसा सिचुएशन था, अभी का सिचुएशन अलग है। ये ऑफलाइन एड्रेस बुक के लिए है, ये अगर ये अपने ये डिफॉल्ट ऑफलाइन एड्रेस बुक रहता है, वो ये भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओके। तुमको बैकअप जो कहाँ पे होता है पोर्ट, ठीक है, वो अपने गलत सेटिंग। ओके, तो ठीक है, एक टाइम आप यदि रिस्टार्ट होते इसको। बैकअप का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज नॉर्मली थर्ड पार्टी का सोल्यूशन ही है अपने पास। विंडोज बैकअप उतना सपोर्टिव नहीं करता प्रॉपर, मतलब उतना ग्रैन्युअल 1 दिन का 2 दिन का आपको रिस्टोर करना तो नहीं होता, उसके लिए वो थर्ड पार्टी करता है। ओके, आपको मैंने बैकअप सर्वर वो जो कब होता है वो बता रहा हूँ। ये सर्वर पे अपन गए, एडिट करें सेटिंग, इंटरनेट जनरल में था, कहा था लॉक में था ना। एक मिनट, मैं देखते हैं।
database बैकअप, मेरे ख्याल डेटाबेस नहीं था, एक मिनट, एडिट, बता रहा हूँ। ओके, एक मिनट है, रिस्टार्ट हो रहा है, इसको करने का रिस्टार्ट। डेटाबेस एडिट, ठीक है, यहाँ पे लास्ट फुल बैकअप था ना, दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टैंपिंग आएगा, बट ये एक्सचेंज कंसोल में या एक्सचेंज सर्वर खुद कुछ नहीं करेगा, तुमको मैन्युअली या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के वाया बैकअप लेगा, बट सिर्फ तुमको बताया कि बैकअप हुआ नहीं हुआ, ठीक है? हाँ हाँ। Got it? तो टुडे का सेशन हम यहीं पे करेंगे, नेक्स्ट कल कंटिन्यू। कल कितने बजे रखेंगे हर्षल? कल छुट्टी अब ना, छुट्टी है तो आपको संडे चलेगा? संडे। हाँ, ठीक है क्या चलेगा। करेंगे, चलेगा ना? 1 हाँ घंटा ले चलेगा। लेंगे तो तुमका जल्दी खत्म हो जाएगा, है क्या नहीं? हाँ हाँ? हाँ हाँ चलेगा। तो अपन 11 बजे 10 या 11 बजे अपन करते हैं, 10 बजे ओके करेंगे, ओके उसको इश्यू ठीक है, है, नो ठीक है प्रॉब्लम। ना? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं अपन अभी ये सेशन कंप्लीट, कुछ है तो पूछो, नहीं तो अपन और 3 मिनट है, तो जब तक डिस्कशन कर सकते, कुछ जरूरत है तो, नहीं है तो देन विल कंटिन्यू, अगर और कल आप ठीक है जो बाकी कुछ ठीक डाउट है, है कल कल आप, कल पूछूंगा कोई डाउट है। ओके। तो आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ स्लो हाँ है, समझ आया। फास्ट है, कुछ रहा तो बताना मेरे को थोड़ा, अगर मैं स्लो हाँ जाऊंगा और थोड़ा सा, नहीं तो हाँ, कोई इश्यू ठीक नहीं, है ठीक है? चलो, ठीक है। बाय, टेक केयर।